Good morning class. Today we are going to discuss about Werner's theory. Students, before coming to Werner theory, there were so many theories of bonding in complex compound. So in order of to explain the bonding in complexes, or you can say coordination compound, the theories has given. Likewise, Werner's theory, there was valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, molecular orbital theory. So we are going to start with the first, that is Werner's theory. Students, talking about Werner's theory, so it was the first attempt to explain bonding and property of complexes. So for this, A. Werner in 1893 AD given the theory, okay, and because of his this contribution to the coordination chemistry, he is known as father of coordination chemistry, as if his theory has some limitations, but A. Werner is called as the father of coordination chemistry. So students, what is the Werner's theory? So basically, he prepared a series of complexes by combination of cobalt, chloride and ammonia, okay, that are called as Werner's series. So you can see in this table here the very first complex COCl3.6NH3, it is yellow in color and its name is luteo. COCl3.5NH3, it is purple in color, its name is purpurio. COCl3.4NH3, it is green in color, it is named as prasio. COCl3.3NH3, violet in color, it is named as violeo. And COCl3.5NH3.H2O is red in color and it is named as roseo. Students, what was his theory? He has given the concept of primary and secondary valency. Okay, he has given the concept of primary and secondary valency. So what are they? Let us discuss. So students, to explain the property of our complexes, Werner proposed following postulate, that is, in complex metal atom exhibit टू टाइप ऑफ वैलेंसी. किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसीज एग्जिबिट करेंगे. द वेरी वन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी विच इज आयोनाइजेबल वन, and the second, that is secondary valency, which is non-ionizable. Okay. So students, talking about primary valency, so primary valencies are satisfied by anions. जो primary valencies होती हैं वो anions के द्वारा satisfy होती हैं, और जो primary valency होती है वो depend करती है upon oxidation number of central metal atom. Okay. And students, जो कोई भी मेटल है अगर वो जिन भी कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करें, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में उनकी अलग अलग प्राइमरी वैलेंसी हो सकती है, एंड इनको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कोबाल्ट के साथ Cl यहाँ प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में है, तो इसे हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी, सो सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगैंड. ये लिगैंड के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, और ये बेसिकली हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है मेटल एटम का उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इन्हें हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में COCl3.6NH3, तो आपको पता है NH3 इज लिगैंड, तो हमने NH3 को एज अ हमने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिगैंड्स के द्वारा, तो इसको हम ब्रॉड लाइन से या आप कह सकते हैं थिक लाइन से इंडिकेट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो जो एनायंस हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होते हैं, और जो कैटायंस हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जब भी डिसॉल्व हुआ वाटर में तो एनायंस प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हो गए, या सीधे हम कहें आयनाइज हो गए, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो अनआयनाइज्ड रहेगी. ये आप कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? आप यहाँ पे देखिए, हमने भी बात की थी, अगर ये कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3, तो हमने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो अनआयनाइज्ड होगी, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं CONH3.6 3+, और वहीं पे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइज हो गई, दैट इज 3Cl-. स्टूडेंट्स, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है डायरेक्शनल होती है. तो ये सारी जो पॉइंट्स थी ये वर्नर्स ने बताया. आप स्ट्रक्चरली अगर इसको समझना चाहेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए जो वर्नर्स ने दिया था, यहाँ आप देख पाएंगे. यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया COCl3.NH3, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Cl जो कि प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया, और NH3 जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसे थिक लाइन से इंडिकेट किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, देयर वर लिमिटेशंस ऑल्सो. इनके लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से अब आप नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि एल पॉलिंग ने दिया था 1930s में. तो इनकी लिमिटेशंस यही थी कि जब इन्होंने कहा कि दिखाया सीरीज़ कि ये मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है
कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कुछ ही मेटल के द्वारा क्यों बन रहे हैं। आफ्टर दैट देयर वर क्वेरीज कि जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इनकी ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही क्यों गवर्न हो रही है, क्योंकि वर्नर ने ये भी बताया था जो सेकेंडरी वैलेंसीज होगी वो कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्री को बताएगी। ओके और द लास्ट थिंग दैट इज ये कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रही थी, तो इस वजह से ये लिमिटेशंस थी वर्नर थ्योरीज की। बट विद द लिमिटेशंस ऑल्सो वर्नर थ्योरी इज टर्म्ड एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी, जहाँ पे आपको समझना है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पे। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।